students, welcome back to my lectures of class 11th physics. We are studying our chapter motion in a straight line. Okay, so here we have new topic that is called as the relative velocity. So first of all, what this relative velocity is? This relative velocity is the velocity of a particular object with respect to another object. That is called as the relative velocity, means with respect to another object. Okay, now here we have two objects which are having some relative velocity, or we'll draw the position time graph for that two objects which are moving. Okay, so we'll draw the position time graph for the relative velocity. First one is the two objects A and B are moving with the same velocity. अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो उस केस में हमारे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट A. This is the position, initial position, and the initial position for the object B, that is equals to xb. अब दोनों की velocity क्या है, सेम है. For example, both the objects are moving in a straight line. If the first object, its starting point is somewhere before the second object, and the second object it is somewhere far away from the first object, but both are moving with the same velocity. दोनों की जो initial position vector है वो अलग अलग है, but both are moving with the same uniform वेलोसिटी. और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसके लिए ग्राफ दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा. दिस इज फॉर द ऑब्जेक्ट बी एंड दिस इज फॉर द ऑब्जेक्ट ए. इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ. दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी. अंडरस्टूड? नाउ इन द सेकंड केस, इफ VB इज मोर देन VA, मतलब अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ द वेलोसिटी इज लेस देन इट्स slope will be also less, and if the velocity is more, its slope will be also more. तो हमारे पास अगर ये हम मानते हैं यहाँ पर position for the object A and the position for the object B. अब यहाँ पर x के लिए velocity क्या है, कम है, तो यहाँ पर इसका जो slope भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. This is for the object A. For the object B, its slope will be more. Why? Because its velocity is more. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. You can write this is for the object B. So in this way we can draw the position time graph if the velocity of object second is more as compared to that of object A. Now third one, that is exactly opposite to that of case number second. Here the velocity of object A is greater than the velocity of object B. तो यहाँ पर क्या होगा, हम assume करते हैं position for the object A XA and position for the object B, that is XB. अब यहाँ पर क्या है, XA की velocity ज्यादा है तो उसके लिए slope भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. This is object A. And for the object B, it is although moving with the uniform velocity, पर उसकी velocity क्या है, कम है, और अगर velocity कम है उसका slope भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. मतलब यहाँ पर क्या होगा, in the second case both the objects will never meet. अगर कोई object आगे चल रहा है, कोई दूसरा object पीछे, इसकी velocity बहुत ज्यादा है, इसकी velocity कम है, so what will happen? The velocity, because of the velocity of the second object, its distance will be very large. तो वहां पर दोनों के बीच में कहीं पर भी एक मीटिंग पॉइंट नहीं आएगा. बट हियर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद द ग्रेटर स्पीड, इन दैट केस देयर विल बी सम पॉइंट वेयर बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल मीट. तो यहां पर दिस पॉइंट वी कैन से दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग. दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन से दिस विल बी द पोजीशन ऑफ मीटिंग. Means at this position both the objects will meet. So this is all about the relative velocity graph, that is the position time graph for the two objects having some relative velocity. So after looking at the graph for the relative velocity, we will see that how this relative velocity can be determined. तो यहाँ पर हमारे पास two cases होंगे. The first one is when the two objects are moving in the same direction. अगर दो objects same direction में move होंगे तो उस केस में वहां पर एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज इट्स वेलोसिटी VA एंड वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट, दिस इज वेलोसिटी VB. यहाँ पर जितना ज्यादा एरो की लेंथ है उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर VA का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू VB. दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. ओके, अब जब भी हमको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी डिटरमाइन करनी होती है तो क्या करना पड़ता है हमको कि जिसका भी मैग्नीट्यूड कम है, जिस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, हमें उतनी ही वेलोसिटी को
सुपर इम्पोज करना पड़ता है दोनों के ऊपर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास यहां पर ये है वेलोसिटी va, दिस इज द सेकंड केस, एंड वी हैव द वेलोसिटी vb। अब यहां पर दोनों में जो vb है वो कम है, तो हम क्या करेंगे, इतनी ही वेलोसिटी vb लेंगे और इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पर हमने क्या ले लिया, माइनस ऑफ vb। सिमिलरली यहां पर क्या ले लिया हमने, माइनस ऑफ vb। मतलब क्या करेंगे कि हमें जो जिसकी वेलोसिटी कम है उसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतनी ही वेलोसिटी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। सो वी हैव अप्लाइड द सेम vb वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जितना यहाँ पर vb है उतना ही हमने इस पे vb माइनस कर दिया, उसमें भी उतना ही vb को हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इन द थर्ड केस what we will see that in the third case this vb will becomes equals to 0। हमको इसको रेस्ट में लेके आना था, तो यहाँ पर क्या हो गया, this vb is equals to 0, वो क्या हो गया, it will be in the rest। now what about the first one, फर्स्ट वन के लिए क्या होगा, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हमें va में से कुछ vb माइनस करना पड़ेगा। मतलब रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी va की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो कितनी होगी, दैट इज va माइनस vb। मीन्स यू कैन से हियर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। मतलब हमने क्या किया, b को क्या किया, 0 किया। सो हियर वी आर गेटिंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, दैट इज इक्वल्स टू va माइनस vb। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द subtraction of the two individual velocities. In this way we can calculate the relative velocity when two objects are moving in the same direction. Now in the second case we will see that if the two objects are moving in the opposite direction, अगर दो ऑब्जेक्ट opposite direction move कर रहे हैं, in that case how we can find the relative velocity of one with respect to another। अब यहाँ पर वही concept use करेंगे हम, we have this va, that is the velocity of one object, but the second one, that is vb, its direction is exactly opposite। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का, और यू कैन से बोथ आर मूविंग इन द एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया था कि वी हैव सुपर इम्पोज द वेलोसिटी विच इज लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, दिस va एंड द vb इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर vb का ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। सिमिलरली हियर वी हैव दिस vb that is in the opposite direction as that of exactly vb। now this is the second case। now the third case what it will be, means अगर हमने यहाँ पर vb में माइनस vb ऐड किया then the resultant will be equals to 0। मतलब यहाँ पर जो vb क्या हो जाएगा, it will be 0, or you can say that will be in rest। but what about the other one, here it is minus vb, so in that case it will become va minus vb। so here vab is equals to va minus vb। लेकिन बट यहाँ पर भी डिफरेंस क्या है, जो पहले वाले केस में था वही केस तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, दैट इज va माइनस vb। बट हियर रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर इनिशियली दिस डायरेक्शन ऑफ va इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ vb। मतलब यहाँ पर जो इनिशियली जो vb था दैट इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। इसका मतलब लास्ट में हमें vb क्या लेना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर दिस vb इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मीन्स इट इज va माइनस ऑफ माइनस vb। सो हियर दिस vab इज इक्वल्स टू va प्लस vb। मतलब यहाँ पर जब भी अपन को रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, if the two objects are moving in the same direction, in that case we have to add the individual velocities to calculate the relative velocity। so if the two objects are moving in the same direction, then we have to subtract to find the relative velocity, and if the two objects are moving in the opposite direction, then we have to add their velocity in order to get the relative velocity। so this is all about the relative velocity।